بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پروگریسو ماڈل اسکول پشاور اور راولپنڈی سے۔ مضمون ہے میرا اردو، جو کہ میں 8ویں اور 9ویں جماعت کے بچوں کے لیے لے کر آئی ہوں۔ آج میں ان کے لیے لے کر آئی ہوں گرامر، اور اس میں ٹاپک پڑھاؤں گی روداد نویسی۔ پلیز سبسکرائب our پروگریسو ماڈل اسکول YouTube channel so you may get latest videos and lectures and activities related to your course۔ روداد نویسی سے پہلے اس کی رہنما اصول آپ ذہن نشین کر لیں۔ نمبر 1، کسی تقریب، منظر یا سفر کا آنکھوں دیکھا حال۔ نمبر 2، الفاظ میں عمدہ اور حقیقی منظر کشی۔ نمبر 3، عمدہ تخیل اور گہرا مشاہدہ۔ نمبر 4، واقعات کا فطری ترتیب سے بیان۔ نمبر 4، واقعات کی جزیات نگاری سے تصویر کشی۔ نمبر 6، ذاتی تاثرات اور اجتماعی رائے کا جداگانہ اظہار۔ نمبر 7، دورس اثرات کا مدلل بیان۔ نمبر 8، موضوع شعری اور نثری حوالہ جات۔ نمبر 9، بھرپور اور بامقصد اختتام۔ اور نمبر 10، 2 یا 3 صفحات پر مشتمل مواد۔ سب سے پہلی روداد جو ہے وہ ایک تاریخی مقام کی سیر ہے۔ تاریخی مقام کی سیر تعلیم ہی کا حصہ ہے۔ اس سے مشاہدہ قدرت کے ساتھ تاریخی معلومات بھی حاصل ہوتی ہیں۔ تاریخی مقامات کی سیر سے اپنے بزرگوں کے عظیم ورثے کو دیکھنے سے ان کی وسعت نظری اور عظمت و بلندی نظر آتی ہے، اور اپنا ماضی بھی سامنے آ جاتا ہے۔ تاریخی مقامات کی اہمیت: تاریخی مقامات کو دیکھ کر عظیم ماضی کی یاد تازہ ہوتی ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ ماضی کے یہ بڑے لوگ کس قدر بہادر، دلیر، شجاع اور مارین فن تھے۔ قدیم کھنڈرات کو دیکھ کر اس دور کی پلاننگ میں ذرائع آمدورا، ذرائع آبپاشی اور طرز بدوباش کا علم ہوتا ہے، جبکہ قدیم عمارات کو دیکھ کر اس دور کے لوگوں کی عظمت کا احساس اور معاشرے سے آگاہی ہوتی ہے۔ سیر کا پروگرام: پچھلے دنوں ہمارے مطالعہ پاکستان کے استاد گرامی آثار قدیمہ کے بارے میں پڑھا رہے تھے۔ جب ٹیکسلا کا ذکر آیا تو استاد محترم نے بتایا کہ ٹیکسلا ایک قدیم شہر ہے اور ٹیکسلا کا عجائب گھر دیکھنے کے لائق ہے۔ ہم نے اپنے کلاس انچارج سے گزارش کی کہ وہ پرنسپل صاحب سے اجازت لے کر ہمیں ٹیکسلا کا عجائب گھر دکھا لائیں۔ جب وہ دفتر سے واپس آئے تو ہمیں یہ مژدہ سنایا کہ اتوار صبح 8 بجے ٹیکسلا کے لیے ہماری بس روانہ ہو جائے گی۔ بس کا کرایہ اسکول ادا کرے گا، لیکن آپ کو اپنے کھانے پینے کا بندوبست خود کرنا ہوگا۔ اس روز صبح مرغی کی دیگ پکوائی گئی، روٹیاں ٹیکسلا بازار سے خریدنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ٹیکسلا روانگی: بس صبح 7 بجے اسکول گراؤنڈ میں پہنچ گئی۔ اساتذہ کرام جو ہماری کلاس کو پڑھاتے تھے ہمارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے، مگر کافی انتظار کے بعد ہمارے مطالعہ پاکستان کے استاد نہ پہنچے تو ان کے گھر میں ٹیلی فون کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ انہیں بخار ہے، مگر ہلکا، زیادہ تیز نہیں۔ ہم نے چند لڑکوں کو ان کے گھر بھیجا اور وہ انہیں سنبھالتے سنبھالتے اسکول تک لے آئے۔ ان کے اسکول پہنچنے پر ہم نے دست بستہ عرض کی کہ حضور، ہم تو تاریخی مقام کی سیر کو جا رہے ہیں، یہ مضمون آپ کا ہے، اگر آپ ہی ہمارے ساتھ نہ چلیں گے تو پھر ہمیں کیا مزہ آئے گا۔ آخر خدا خدا کر کے وہ بھی چلنے کو تیار ہو گئے۔ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ٹیکسلا کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں طلبہ نے بڑے ذوق و شوق سے قومی اور ملی ترانے گائے۔ ٹیکسلا میں داخلہ: جوں ہی ہماری بس ٹیکسلا کھنڈرات کے آثار کی حدود میں داخل ہوئی تو چھوٹی اینٹ والے پرانے مکانات کو دیکھنے کے بعد ہم نے اندازہ لگایا کہ یہ بہت پرانا شہر ہے۔ ٹیکسلا کبھی بدھ تہذیب کا گہوارہ ہوتا تھا۔ اشوک کے زمانے میں ٹیکسلا میں بہت بڑی یونیورسٹی تھی جس میں دور دراز سے طالب علم اپنی علمی پیاس بجھانے آتے تھے۔ ٹیکسلا 2 تہذیبوں کا سنگم بھی رہا ہے۔ قدیم تہذیب: ان عمارات اور کھنڈرات میں قدیم زمانے کے بدھ مت اور ہندو تہذیب کے اثرات بھی ملتے ہیں۔ آج بھی اگر ٹیکسلا کے گرد و نواح کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ٹیکسلا بہت بڑی اور بہت پرانی بستی رہی ہے جس میں ہر طرح کے لوگ آباد تھے۔ یہ لوگ ہنرمند اور زراعت پیشہ بھی تھے۔ ٹیکسلا کے کھنڈرات: ٹیکسلا کے کھنڈرات سے جو چیزیں ملتی ہیں ان کے مشاہدے سے پرانے زمانے کے لوگوں کے پیشوں، طرز رہائش، لباس، زیورات، آلات، زراعت اور کھیتی باڑی کے طور طریقوں کا علم ہوتا ہے۔ برتن صاف ستھرے اور خوبصورت نظر آئے۔ عورتوں کے زیورات بھاری مگر خوبصورت ہیں۔ ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس عہد کے لوگ کس قدر صاف ستھرے اور محنت کش تھے۔ ترقی یافتہ تہذیب: ٹیکسلا کی تہذیب کے بارے میں ہمارے مطالعہ پاکستان کے استاد صاحب نے جو باتیں ہمیں ان کھنڈرات پر کھڑے ہو کر بتائیں وہ ہمیں آج بھی یاد ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ٹیکسلا کبھی تہذیب کا منبع تھا۔ جو تہذیب یہاں سے پھوٹی وہ سارے پاک و ہند میں پھیل گئی اور ایک طویل عرصہ اسی تہذیب کا دور دورہ رہا۔ یہ خرید و فروخت کی بہت بڑی منڈی اور علم کا گہوارہ بھی تھا۔ ٹیکسلا کا عجائب گھر:
टेक्सला का अजायब घर बुद्ध तहजीब का गहवारा है। महात्मा बुद्ध का बहुत बड़ा बुद्ध अजायब घर में दाखिल होते ही आने वाले मेहमानों का इस्तकबाल करता है। यहाँ हमने बुद्ध मत के आसार देखे। महाशरत का शिकार। इस अजायब घर में पुराने जमाने की मूर्तियां, जेवरात, मलबूसात और आलाते काश्तकारी जैसी तमाम अशिया रखी हैं। इनको देखकर इस दौर की मुआशरत और तमद्दन से आगाही मिलती है। महात्मा बुद्ध के बुतों की कसरत इस बात के यकीन दिलाती है कि लोग ज्यादा तरबत पसंद थे। टेक्सला का ये अजायब घर अंग्रेज ज्यादातर लोग बुत परस्त थे। टेक्सला का ये अजायब घर अंग्रेज हुकूमत के दौर में कायम हुआ था। उसकी अशिया में इजाफा हो रहा है। यहाँ ज्यादातर टेक्सला के खंडरात से दरियाफ्त होने वाली अशिया हैं जिन्हें देखकर इस दौर की तहजीब और माशरत का इल्म होता है और न सिर्फ तारीख का मुताला करने में आसानी रहती है बल्कि कदीम तारीख आंखों के सामने आ जाती है। बेहतरीन तालीमी सैर। टेक्सला के खंडरात और अजायब घर देखने के बाद हमें कदीम तहजीब का पता चला। इस दौरान तमाम दोस्तों की लतीफ़ा गोई, जुगतबाजी और बैतबाजी ने और भी मज़ा दिया। तमाम तलबा ने बारी बारी लतीफ़े सुनाए और शेर व शायरी भी हुई। बिलाशुबा ये बेहतरीन तालीमी सैर थी। खुलकर गपशप और लतीफ़ा गोई ने इस टूर को 4 चांद लगा दिए। सभी तलबा इस सैर से बहुत खुश थे और कदीम तहजीब से आगाही भी हासिल हुई। वापसी का सफ़र। दोपहर का खाना एक बाग में खाया। फिर शाम ढले तमाम तलबा असातिज़ा के हमरा बस में सवार हुए और अंधेरे में अपने स्कूल पहुंचे जहां सबके सरपरस्त लेने के लिए खड़े थे। हमें देखते ही सब सरपरस्त खिल उठे और अपने अपने बच्चों को लेकर घर को चले। हम सब ने शुक्र रब्बी अदा किया कि बखैर खूबी अपने घरों को लौटे हैं। बिलाशुबा ये मेरी ज़िंदगी का सुनहरी दिन था। तो इस तरह हमने कंप्लीट की अपनी एक रोदाद। इसके पॉइंट्स आपने तरतीब से बयान किए तो यूँ लगा कि हम इस रुदाद में खुद एक हिस्सा बने हुए हैं। तरतीब से इनके पॉइंट्स को बयान करना है ताकि इसमें उम्दा तखय्युल और गहरा मुशाहदा नजर आता रहे। दूसरी रुदाद है मेले का आंखों देखा हाल। मेले का लफ्ज़ मेल से माखूज है जिसकी मानी मिलना या मिलाप के हैं। इंसानी तहजीब व सकाफत को परवान चढ़ाने में इन मेलों का बड़ा दखल है। ये हमारी माशरत की भरपूर अक्कासी करते हैं। ये शेर इस बात की दलील देता है कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। अहमियत यानी मेलों की अहमियत। मेले बरसगीर पाको हिंद में सालाना इज्तिमा की हैसियत रखते हैं। इनमें अक्सर बिछड़े मिल जाते हैं। ज़माना कदीम से इन मेलों में कौमी और सकाफती और इलाकाई रस्म व रिवाज का इजहार किया जाता है। मेलों में शहज़ोर अपनी कुव्वत का मुजाहरा करते हैं। फनकार अपनी फनकाराना सलाहियतों से लोगों से दाद वसूल करते हैं। मेलों में जानवरों के खेल तमाशे भी दिखाए जाते हैं। सर्कस और चिड़ियाघर भी होते हैं। मेलों की अकसाम। मेले रोम यूनान और इराको पाको हिंद में यकसां जोश व खरोश से मनाए जाते थे। आजकल इन मेलों में गैर मुल्की सनती और ज़री तरक्की के अलावा फ़नून व सकाफत और इलाकाई सकाफत को भी पेश किया जाता है। ये मेले बुजुर्गान दीन के मज़ारात पर भी मुनक्कद होते हैं जिन्हें उर्स कहा जाता है। उर्स हमारी तर्ज ज़िंदगी, माशरत और रहन सहन में नहायत अहम मकाम रखते हैं। आजकल सनती नुमाइश और मौसमी मेले मकबूल हैं। मेले का आंखों देखा हाल। मैं आज जिस मेले का आंखों देखा हाल बयान करना चाहता हूँ वो बागबानपुरा लाहौर में शालामार बाग के करीब लगता है और मेला चरागा के नाम से मशहूर है। कहते हैं सूफी बुजुर्ग शाह हुसैन का एक हिंदू खिदमतगार था जिसका नाम माधुलाल था। माधु ने एक दिन हजरत शाह हुसैन से कहा कि आप बहुत हर दिल अजीज और नेक हैं, दुनिया में आपका नाम होगा मगर माधु को लोग भूल जाएंगे। हजरत शाह हुसैन ने, जो माधु से बहुत खुश है, कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। शाह हुसैन के नाम से पहले माधु का नाम आएगा। चुनाचा आज भी लोग उनके मज़ार को माधु लाल हुसैन कहते हैं और यूँ लगता है जैसे ये उनके नाम का हिस्सा है। जैसे शाह हुसैन का नाम अमर है, माधु जो बाद में मुसलमान हो गया का नाम भी अमर हो चुका है। ये खिदमत का नहायत उम्दा सिला है। दोनों हजरात के मज़ार भी साथ साथ हैं। मेला चरागा। मेला चरागा हर साल मार्च के महीने में माधुलाल हुसैन के मज़ार पर मुनक्कद होता है और 3 दिन तक जारी रहता है। अकीदतमंद दूर दूर से इस मेले में शिरकत के लिए आते हैं और अकीदत के फूल निछावर करते हैं। इस मेले में पंजाब की सकाफत और तहजीब के अलावा अहले पंजाब की जिंदा दिली के मनाजर भी देखने को मिलते हैं। इस मेले में इर्द गिर्द के देहातों और शहरों से खूबसूरत लोग रेशमी जर्क बर्क लिबास पहने शिरकत करते हैं। मज़ार के चारों तरफ दुकानें सज जाती हैं जिनमें खाने पीने की चीज़ों की फरावानी होती है। जहाँ दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी भी मुयसर होती हैं। ज़ौक़-ओ-शौक़।
तमाशाइयों के ज़ौक़ तफरीह को मद्देनज़र रखते हुए सर्कस, थिएटर, मदारी का खेल, बाजीगरी, घड़सवारी, मौत का कुआं और बच्चों के झूले, खाने पीने और ज़रूरी और फ़नी दुकानों का इंतज़ाम होता है। इस मेले में लोग नाचते गाते और झूमते हुए नजर आते हैं। हर टोली के आगे एक आदमी होता है जिसके हाथ में एक लंबे बांस पर लकड़ी की एक गुलहरी बंधी होती है जिसके साथ एक रस्सी होती है। ये आदमी जब रस्सी खींचता है तो गुलहरी एक आवाज निकालती है जिससे लोग बड़े ही महजूज होते हैं। टोलियों के साथ ढोल वाले भी होते हैं जो एक खास अंदाज से ढोल पीटते हैं जिससे इंसानी दिल में एक ही जान बर्पा हो जाता है। लोग इसके गिर्द लुट्टी और भंगड़ा डालते हुए मैदान में दाखिल होते हैं। रंग नूर का सैलाब, लोगों के जर्क पर लिबास और रोशनियां देखकर यूं महसूस होता है कि रंगो नूर का सैलाब उमड़ चला आ रहा है और उसके जलों में कहकाओं की बारात चली आ रही है। लोग फिक्र और गम भूल जाते हैं और ऐसा महसूस होता है कि गौतम बुद्ध का ये कौल दुनिया दुखों का घर है गलत है। यूं लगता है कि दुनिया में खुशियां ही खुशियां हैं और दुखों का कहीं निशान तक नहीं। ये मेला पुर रौनक और पुर लुत्फ होता है। महफिल समा, इस मेले पर लोगों की रूहानी तस्कीन के लिए महफिल समा का बंदोबस्त भी होता है। कवालों की बेशुमार पार्टियां अपने अपने मखसूस अंदाज में आरफाना कलाम पेश करती हैं, लोगों के दिलों को मार्फत से मुनव्वर करती हैं और लोग सर दुनते हैं, बाज लोग धमाल डालते हैं। मेलों की अफदियत, आज के दौर में इंसान मसरूफियात का कैदी बनकर रह गया है। मशीनों ने एहसास मुरब्बत को नापैद कर दिया है। चारों तरफ मजबूरी और परेशानियां हैं। ये सब चीजें इंसानी तहजीब की हुस्न को दीमक की तरह चाट रही हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी मसरूफियाती ज़िंदगी में से कुछ वक्त निकाल कर सैर व तफरीह करें। इन सनती नुमाइशों, सूफिया के अरूस और मौसमी इलाकाई मेलों में ज़रूर जाएं जहाँ मुस्कुराहटें सबकी मुंतज़िर होती हैं और चारों तरफ खुशियाँ बांटी जाती हैं। यहाँ भरपूर जिंदगी होती है जो तफरीह का बायस होती है। ये थी दूसरी रुदात। तीसरी रुदात है फुटबॉल मैच का आंखों देखा हाल। खेल को इंसानी जिंदगी में बहुत अहमियत हासिल है। खेल जिस्म की नशोनुमा और अफजाइश सेहत के मौके फराहम करता है। एक मशहूर कौल है कि सेहतमंद दिमाग सेहतमंद जिस्म में होता है। खेल महज जिस्म ही के जरिए नहीं खेला जाता बल्कि कोई भी खेल हो इसमें इंसानी अक्ल शऊर को बड़ा दखल हासिल है। खेल के जरिए लोगों में बामी मोहब्बत और मेल जोल बढ़ता है। खेल इंसानी जिंदगी में डिसिप्लिन पैदा करता है और जिंदगी के उतार चढ़ाव में तमुल मिजाजी और बुर्दबारी सिखाता है। खेल से इंसान मोहब्बत व अखुवत और हुक्म मानना सीखता है। खेल सुलह पसंदी सिखाता है और प्यार मोहब्बत का दर्स देता है। मैच का आंखों देखा हाल, मैं एक दोस्ताना मैच की रुदात सुनाता हूँ जो मॉडल स्कूल और तमलीमी स्कूल टीम के दरमियान खेला गया और हमारी स्कूल टीम के दरमियान खेला गया। हमने मेहमान टीम का भरपूर इस्तकबाल किया और ठीक 5 बजे मैच शुरू हो गया। हजूम, शहर के मुअज़्ज़िज़ीन और अवाम मैच देखने के लिए जौक तर जौक खेल के मैदान में पहुंच गए। दोनों स्कूलों के तलबा और असातिज़ा भी अपने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए मैदान में मौजूद थे। लोगों का हजूम इस कदर था कि ग्राउंड के इर्द गिर्द तिल धरने को जगह न थी। हर तरफ सर ही सर नजर आ रहे थे। मैच का आगाज, रेफरी ने सीटी बजाई। सीटी की आवाज सुनते ही दोनों टीमों के खिलाड़ी मैदान में निकल आए। तमाशाइयों ने तालियां बजा बजा कर आसमान सर पर उठा लिया। दोनों टीमों के कप्तानों ने हाथ मिलाया। फिर टॉस किया गया। हमारा स्कूल टॉस जीत गया तो दोनों टीमों के खिलाड़ी अपनी अपनी जगह खड़े हो गए। हमारे कप्तान ने फुटबॉल को किक लगाई। इस तरह मैच शुरू हुआ। खेल इब्तदाई से इस कदर दिलचस्प था कि हर कोई इससे महजूज हो रहा था। मुखालिफ टीम ने गोल पर कई हमले किए मगर कामयाब ना हो सकी। हमारे स्कूल के खिलाड़ी बड़े जोशो खरोश और सरगर्मी से खेल रहे थे और गोल करने की सरतोड़ कोशिश में मसरूफ थे। वक्फा, इतने में रेफरी ने सीटी बजा दी। खिलाड़ियों में किन्नू तकसीम किए गए। तकरीबन 10 मिनट का वक्फा दिया गया। वक्फे के दौरान सब लोग अपनी अपनी टीमों के लिए दुआएं करते इंतहाई पुरजोश नजर आए। आगाज मुकर्रर, वक्फा खत्म होते ही खेल के आगाज में मुखालिफ टीम ने हमारे गोल पर बड़े जोरदार हमले किए। मगर हमारा गोलकीपर गेंद गोल के करीब से भी गुजरने नहीं देता था। वो खेल पर छाया हुआ था। हमारी टीम इनको शिकस्त देने पर तुली हुई थी जबकि मुखालिफ टीम हमारी टीम को शिकस्त देने पर मिसर थी। ये कशमकश दिलचस्प थी। जानदार खेल, अब खेल कदरे जानदार हो गया। तमाशाइयों ने टीम की हौसला अफजाई के लिए पुरजोश नारे लगाने शुरू कर दिए। इतने में गेंद अचानक मॉडल स्कूल के राइट आउट तक पहुंच गया। वो बड़ा फुर्तीला निकला और तमाम खिलाड़ियों हत्ता के फुल बैक से भी बाल निकलकर डी में पहुंच गया। अब वो अकेला था और सामने सिर्फ गोलकीपर था। तमाशाइयों को यकीन था कि इस बार जरूर गोल हो जाएगा मगर जो ही खिलाड़ी ने किक लगाने के लिए पांव उठाया
गोल कीपर आकर बाल पर गिर पड़ा। इसमें गेंद को पकड़ा और ठोकर लगाकर दूर फेंक दिया। फाइनल गोल। खेल खत्म होने में 10 मिनट बाकी थे कि खेल में बड़ी जान पैदा होगी। हमारे स्कूल के एक खिलाड़ी ने डी में पहुंचकर ऊंची किक लगाई। मॉडर्न स्कूल की टीम के एक खिलाड़ी ने इसे पकड़ने की कोशिश की, मगर बाल उछला और गोल कीपर के हाथों को छूता हुआ गुजर गया। यूं गोल हो गया। हमारे स्कूल के तलबा ने गोल गोल का शोर मचाया। थोड़ी देर बाद रेफरी ने खेल खत्म करने का ऐलान कर दिया। हमारा स्कूल एक गोल से जीत गया था। तलबा ने अपने खिलाड़ियों को कंधों पर उठा लिया और नारे लगाते हुए रवाना हो गए। आज का फुटबॉल मैच इंतहाई दिलचस्प था। सब लोग इंतहाई मसरूर थे। वाकईतन ये एक यादगार मैच था। बच्चों, ये थे आपकी 3 रुदाद। क्योंकि पेपर में अनसीन आती है, ये पैटर्न के तौर पर आपको मैंने रुदाद करवाई हैं। इसके मेन पॉइंट्स आपने जहन में रखने हैं और जिस भी टॉपिक पर रुदाद आ जाए उसको इन पॉइंट्स को अपने जहन में रखते हुए रुदाद लिखनी है। जहाँ रहें खुश रहें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह।